سب کرنے والے کے سوال کے ساتھ موضوع خبر اپنے بھائی کے سوال سے پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کے سوال سے اپنے بھائی کے سوال راج کا اسی طرح تحقیق بتلائی یوسف اسی طرح بلا بتلایا یوسف ماتا لیا پورا یہاں دیکھو تمہیں بیٹے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے بلند کرتے ہیں درجات درجے جس کے بچے اور ہر علم رکھنے والے کے اوپر زیادہ علم والا اور ہر علم والے سے زیادہ وہ علم والا اور بھائیوں نے کہا اگر اسے اور سرق أخ له من قبل تو تحقیق اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تو اس بات کو خاص پہ رکھا یوسف نے اپنی بھی اور ظاہر نہ کیا اس کو ان کے سامنے یعنی بھائیوں کے سامنے اور یوسف نے کہا تم لوگ شر بہت برا درجہ رکھتے واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو خیال کرتے اور بھائیوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز اے وزیر اعظم لہو ابل شیخن کبیر بے شک اس کا والد بہت بوڑھا ہے فخذ احدنا مکانہ تو آپ لے لیجیے ہفتے سے کسی ایک کو اس کی جگہ لا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکوکاروں میں اور یوسف علیہ السلام نے اللہ یہ ہم نے الا مگر وجدنا اس شخص کو کہ جس کو ہم نے پایا متاعنا اپنا سامان اس کے یا اذن لظالمون بے شک ہم تو ہم ظلم کرتے ہیں
پہلے بادشاہ کو کپڑے دیے اور پانی اس کے کناروں پر موتی لگے ہوئے، بعد کو وہ پیمانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی سے جو لوگ غلہ اناج میں کھاتے، اسی سے لوگوں کو وہ غلہ دیا جاتا ہے، جب تو پیمائش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے یہ بات کر کر کہ ہیلا ہوگا کہ اس ہیلے کے ذریعے آپ کو اپنے پاس روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سوال میں رکھوا دیا۔ تو جب قافلے والے روانہ ہوئے، جب بھائی غلہ لے کر واپس جانے لگے تو نگران نے پیچھے سے آواز کہ اے قافلے والوں تم چور ہو، تم نے چوری کی۔ تو وہ کہنے لگے، پیچھے مڑ کر ان بھائیوں نے دیکھا، کہنے لگے ہم نے چوری نہیں کی، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہمارا مقصد زمین میں فساد پھیلانا ہے، کیونکہ چوری کے ذریعے جو ہے عمل ختم ہوتا ہے، چوری کے ذریعے بے امنی پھیلتی ہے، چوری کے ذریعے جو ہے سکون برباد ہوتا ہے، لوگوں میں جھگڑے بڑھتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں اور فساد پھیلتا ہے۔ ہمارا مقصد نہیں ہے، اللہ ہم زمین میں فساد پھیلانے آئے ہیں کہ فساد پھیلائیں۔ یہ بھائیوں نے جواب دیا، نگرانوں نے کہا کہ بتاؤ اس کے پاس چوری کا سامان ثابت ہو گیا، اس کا کیا بدلہ ہے جب تم جھوٹے ثابت ہو؟ تو انہوں نے کہا اس کا بدلہ یہی ہے، اسی کو رکھ لیا جائے، غلام بنا جس نے چوری کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یعنی مصر میں رہتے ہیں اور آپ مصر کے وزیر اعظم ہیں، وزیر مالیات ہیں، تو بادشاہ ولید بن ریان ہے، تو اس کے قانون کے مطابق اگر کوئی چوری کرتا تو چوری کرنے والے کو سزا دی جاتی اور جتنی چوری کی ہوتی اس سے ڈبل اس سے لیا جاتا۔ اور کنعان والوں کے ہاں سزا یہ تھی، یعنی شام کے علاقہ کنعان کا شہر جو حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی علاقہ ہے، بھائیوں کا آبائی علاقہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا علاقہ ہے، وہاں کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا چوری کے عوض اسے غلام بنا لیا جاتا، اس سے خدمت دی جاتی، جتنی چوری کی ہوتی اتنی ہی اسے سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا جاتا۔ تو اس لیے وجہ یہ کہ مصر کے قانون کے مطابق سزا دی جاتی، چونکہ بھائی کو روکنا مقصد تھا، تو اس لیے فرمایا کہ تم ہی بتلاؤ اس کی سزا کیا۔ اب وہ تو جانتے تھے کہ جو چوری کرنے والا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں تھا کہ چوری جس کے کنعان شہر والوں کے ہاں جو چوری کرتا ہے اسے غلام بنا لیا جاتا ہے اور اس سے ایک زمانے تک خدمت دی جاتی ہے، مزدوری کرائی جاتی ہے، کام کاج کرائے جاتے ہیں۔ تو انہیں سے پوچھا تو انہوں نے اپنا قانون بتلا دیا، ہمارا قانون تو یہ ہے، اسی قانون کے مطابق بتلا دیا کہ اس کو غلام بنا لیا جائے۔ اب یہ اندازہ تو تھا نہیں کہ بنیامین کے سامان کے اندر ہی وہ چوری کا سامان نکلے گا، بہرحال ان کو چور کہا۔ اب میں نے سوال چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور اگر جو ہے اگر یہ تصویر کر لیا جائے کہ اس وقت حکومت نہیں بھی ملا تو ولی تو وہ ضرور تھے اللہ رب العزت، اور ولی کی یہ شان نہیں ہوتی کسی بے گناہ کو چور قرار دینا، کسی بے گناہ کو چور قرار دینا۔ لیکن یہ تو علم میں تھا کہ چوری انہوں نے نہیں کی، لیکن ان کو چور ثابت کیا۔ اس کا ایک جواب یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پیالے کو دکھایا کہ نگران تھے، ان کے علم میں نہ، تو یہ کہنے والے کہ تم چور ہو۔ جیسے ہی انہوں قافلہ روانہ ہوا اور قافلے کے روانہ ہونے سے پہلے وہ پیالہ موجود تھا، پیمانہ موجود تھا، جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو نگرانوں نے دیکھا کہ پیالہ موجود نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو کوئی بات وضاحت کے ساتھ نہیں بتلائی، اپنے دل میں رکھا۔ تو نگرانوں
से ताक़ुब किया, पीछा किया और ये बात निगरानों ने कही कि तुम चोर हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूसरा जवाब दिया कि अगर बिलफर्ज ये समझ लिया जाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि चोर हो, तो फिर ये एक हिला था, एक हिला था जिसे तोरिया कहा जाता है। यानी जो बात करने वाला है, तोरिया करने वाला है, मुतकल्लिम के जहन में दूर का माना है और जो मुखातिब है उसके जहन में करीब का माना है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सफ़र पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तो सफ़र के दौरान लोगों ने सवाल किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तेरे साथ कौन है, तेरे साथ कौन है? तो आप सब वसल्लम को लोगों ने देखा हुआ नहीं था, पूछा ये कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मेरे साथ यहदीन सबील, ये मेरे रजुल यहदीन सबील, ये एक शख्स मुझे रास्ते की रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखलाने वाला। लोगों ने तो ये करीब का माना समझा, भाई इस रास्ते का नहीं पता चलता तो ये रास्ता बदलाता है, तो उस रास्ता को से लागे तो बच जाता है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूर का माना अपने ज़हन में रखा जन्नत की तरफ लेकर जाता है, अल्लाह के साथ अल्लाह की तरफ लेकर जाता है, उस रास्ते की ये रहनुमाई करने वाला है। तो लोगों ने यह समझा कि ये आम जो रास्ते होते हैं इनकी रहनुमाई करने वाला है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तोरिया किया, दूर का मफ़हूम रखा कि ये तकलीफ का रास्ता बताता है, जन्नत का रास्ता बताने वाला है। तो ये तारुफ कराया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुतकल्लिम की मुराद दूर की होती है और मुखातिब की मुराद करीब की होती है, तो इसे जो है तोरिया कहा जाता है, हिला कहा जाता है। तो उस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तोरिया किया, तोरिया इख्तियार किया और जो है कि तुमने चोरी की मुझे, यानी याकूब के बेटे यूसुफ को उसके वालिद से चुरा कर और उसे काफिलों वालों के हाथ फरोख्त कर कर तुमने चोरी की। तो वो मफहूम दूर का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखा कि तुम चोर, और उन्होंने ये समझा कि हमें बिल वक़्त कोई चोरी हमारे ऊपर लागू की जा रही है और मुसल्लत की जा रही है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तोरिया किया और दूर का मफहूम सामने रखा, तो तुम लोगों ने या मेरे वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से उसके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को चुरा कर कांपने वालों के हाथ फरोख्त कर सकते हैं। तो ये दूर का मफहूम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखा। तो इस एतबार से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई गलत नहीं किया, ये झूठ नहीं बोला या इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि तोरिया इख्तियार किया। तो इन आयात करीमा का मफहूम क्या है, तो अब वो समाप्त फरमाया और काफिले वालों ने कहा अल्लाह की कसम, ये ता जो है ये कसमिया, वाव कसमिया, वल्लाह अल्लाह की कसम, वाव भी कसम के तौर पर इस्तेमाल होती है, तल्लाही ता भी कसम के तौर पर इस्तेमाल होती है, बिल्लाही वा भी अंत कसम के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी यूँ कहा जा सकता है तल्लाह, अल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल हुए, बिल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल हुए, वल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल हुए, वल्लाह अल्लाह की कसम, तल्लाह अल्लाह की कसम, बिल्लाह अल्लाह की कसम। तो ये सब कसम के तौर पर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ता आया है कसमिया। तो कहा उन काफिले वालों ने यानी भाइयों ने तल्लाही अल्लाह की कसम, लक़द आलिमतुम अलबत्ता तहक़ीक़ तुम जानते हो, मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ हम नहीं आए ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए, और ना ही वमा कुन्ना सारिकीन हम चोरी करने वाले हैं। तो फिर कहा निगरानों ने अच्छा फिर बतलाओ, फ़मा जज़ाउहु क्या बदला है उसका, इन कुंतुम काज़िबीन अगर तुम झूठे साबित हुए तो उस चोर का क्या बदला है। क़ालू भाइयों ने कहा
जज़ाउहु मन वुजिदा फी रहलिही, उसका बदला यही है कि जिसके सवाल में वो चोरी का सवाल पाया जाए, वह जज़ाउहु, वही उसका जब उसे अपने पास रख लिया जाए, उसे रख लो अपने पास गुलाम बना, जो कि फ़िलहाल वालों का कानून है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा उसे गुलाम बना लिया जाए जिस जो चोर साबित हो। कज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन, हमारे हाथों जुल्म का यही बदला दिया जाता है। जो जालिम जुल्म करता है, हम जो चोर चोरी करता है, हमारे हाथों कानून यही है, उसी को गुलाम बना लिया जाता है और उसी को उस चोरी के इवज़ में रख लिया जाता है। तो फिर अब तलाशी लेना शुरू सामान की, तो सामान की तलाशी लेने में पहल भाइयों के सवाल से की, बिन्यामीन के यानी दूसरे भाइयों के सवाल से की, सगा भाई बिन्यामीन के सवाल से नहीं, सौतीले भाइयों के सवाल से की शुरुआत, तो ताकि उनको शक न पड़ जाए कि इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर सामान रखा है इसके सवाल में। बाबादाब तो इब्तदा की उनके सवाल के साथ क़ब्ल अपने भाई के सवाल से पहले जहाँ फिर निकाला, यानी उनके भाइयों के 10 भाइयों के सवाल की तलाशी लेने के बाद फिर बिन्यामीन के सवाल से तलाशी ली, फिर बिन्यामीन के सवाल से किसी ने तलाशी ली तो उसके सवाल के अंदर से निकल आया अपने भाई के सवाल से निकाल लिया उस प्याले सगाल का कितना यूसुफ। अल्लाह फरमा रहा है इसी तरह हमने तदबीर बतलाई यूसुफ, या हमने हिला बतलाया, तरीका बतलाया भाई को रोकने का यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यानी अल्लाह अपनी तरफ निस्बत कर रहे कि मैंने यूसुफ को बतलाई ये तदबीर कि इस तदबीर से आप यूसुफ बिन्यामीन को अपने पास रख सकते, क्योंकि अगर ये तदबीर इख्तियार नहीं करते तो वलीद बिन तैयार जो बादशाह था उसके कानून के मुताबिक बिन्यामीन को अपने पास रोक नहीं सकते। और चूँकि भाई वादा कर आए थे वालिद से, पहले एक मरतबा हम झूठे साबित हो गए, यानी वालिद को हमने दुख दिया, तकलीफ दी भाइयों को, उसका बाद में एहसास भी हुआ, तो हम दोबारा नहीं चाहते कि हम अपने भाई को बिन्यामीन को अपने वालिद से जुदा कर एक मरतबा फिर अपने वालिद को तकलीफ में मुब्तला करें। तो भाई का किसी भी हालत में बिन्यामीन को यूसुफ के सामने यूसुफ के पास छोड़ने के लिए तैयार ना होते, और ये बात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जानते थे, इसलिए कोई ठोस किस्म का हिला इख्तियार किया गया कि जिसकी बिना पर कोई उज़र ऐसा ना हो कि जिसकी बिना पर बिन्यामीन किलान जा सके। अब चूँकि उसकी बिना उसको रोकना था और राज जाहिर करना था और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी आना था, इसलिए ये सारे मामलात तो तदाबीर तो इख्तियार करनी ही थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मामलात तो पेश करने ही थे, तो इसलिए फरमाया कज़ालिका किदना यूसुफ, इसी तरह हमने तदबीर बतलाई यूसुफ को, कान लिया खुदाफ़ाहु फी दीन मलिक, ना थे यूसुफ अपने भाई को बादशाह के कानून में लेने वाले कि वो बिन्यामीन को रोक लेते, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि वो अल्लाह ने चाहा, नरफ़अ दरजात मन नशा, हम बुलंद करते हैं बहुत सारे लोगों के दर्जों को जिसका हम चाहते हैं, वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है और वो अल्लाह की ज़ात है। क़ालू, भाई कहने लगे, यसरिक, अगर इसने चोरी की है ना, फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल, तो इससे पहले इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की, यानी भाई के लिए। इसकी तफसीर इंशाअल्लाह मैं कल बयान करूँगा। असर रहा यूसुफ के नफ्स ही, फिर उन्हें उस बात को जो वो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे यूसुफ के ऊपर, तो उस बात को हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में राज रखा, फिर कोई वजाहत नहीं की और उनके सामने जाहिर भी किया कि जो तुम बात करो ये सब झूठ है, इसकी हकीकत कुछ नहीं। तो फरमाया कि तुम लोग बहुत बुरे हो कि तुमने अपने वालिद से उसके बेटे को जुदा कर दिया और अब चोरी का भी इल्ज़ाम यूसुफ के ऊपर लगा रहे हो, तुम बहुत बुरे हो और तुम जो बातें करते हो अल्लाह तो खूब जानता है तुम जो बातें कर रहे हो कि कितने तुम इसमें सच्चे हो कितने झूठे हो। बहरहाल भाइयों ने कहा कि ए अजीज़, ए मिस्र के वज़ीर आज़म, हमने देखा है आप नेकी करने वाले हैं, एहसान करने वाले हैं, हम पर शफ़क़त करने वाले हैं, हमारा बाप बहुत बुरा है, अगर तू रोकना ही चाहता है ना उसको तो हम में से किसी और को रोक ले, लेकिन हमारे भाई बिन्यामीन को ना रोक, वरना इससे हमारे वालिद को बहुत तकलीफ़ हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया
माज़ल्लाह, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह की पनाह, जो मुलजिम है उसी को सज़ा दी जाएगी, उससे हटकर अगर मैं किसी और को सज़ा दूँगा तो फिर तब तो मैं ज़ालिम हो जाऊँगा। तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो उसी को रोकूंगा जिसने चोरी की है। बहरहाल इन आयात करीमा की मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह मैं कल करूँगा, और अगले आयात करीमा के अंदर मज़ीद इस वाक़े की तफसील है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात